Bismillahirrahmanirrahim. Now we are starting our another lecture or the next lecture, and what we were discussing Fick's first law of diffusion under the main heading of transcellular transport and the passive diffusion. So now what is Fick's law of diffusion? Passive diffusion of a drug across the gastrointestinal tract can often be described mathematically by Fick's first law of diffusion. When considered in context of the bioavailability, this indicates that the rate of diffusion across a membrane, which is called dC by dt, यानी change in concentration per unit change in time, is proportional to the differences in concentration in each side of that membrane. Means again this is the same principle which we have already discussed कि ये जो concentration change होगी, जो movement होगी अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो डिपेंड करेगी कि गट में कितनी कंसनट्रेशन ज़्यादा है और ब्लड में कितनी कम कंसनट्रेशन है. जितना ये डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे, यानी जितनी कम कंसनट्रेशन ब्लड में होगी और जितनी ज़्यादा गट में होगी, उतना ज़्यादा प्रोपोर्शनली, उतना फास्टली ये मूवमेंट जो होगी वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन होगी, यानी ड्रग एब्जॉर्ब होगी. नाउ देयरफॉर द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए ड्रग एट in the blood at the absorption site is given by, लिहाजा रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा, dC by dt इज इक्वल टू k Cg माइनस Cb. Cg क्या है, कंसनट्रेशन इन गट एंड कंसनट्रेशन इन ब्लड, एंड दिस इज द डिफरेंस in the concentration, where dC by dt is the rate of appearance of a drug in the blood at a absorption at site of absorption. K is the proportionality constant, and the Cg is the concentration of a drug in solution in the gut or the gastrointestinal tract at the absorption site, and Cb is the concentration of the drug in the blood at the site of absorption. जैसा कि मैंने अभी बताया, ये है proportionality constant के, Cg concentration in gut, Cb concentration in blood, this is change of concentration. इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, this is disappearance of a drug in the gut, क्योंकि ड्रग डिसअपियर होके एब्जॉर्ब होके जा रही है ब्लड में. और इसको आप ये भी कह सकते हैं अपीयरेंस ऑफ ए ड्रग इन द ब्लड, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए ड्रग इन द ब्लड, क्योंकि जो वहाँ से गट से ख़त्म होके कहाँ आ रही है, ब्लड में आ रही है, तो वहाँ पे अपीयर हो रही है. तो इस तरह से भी हम इसको कह सकते हैं. द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के incorporates the diffusion coefficient of the drug in the gastrointestinal membrane D and the thickness H and the surface areas of the membrane. ये जो proportionality constant है, it depend upon three factors: diffusion constant or diffusion coefficient, A is the area available for the absorption, surface area, H is the thickness of the biological membrane. So these equation indicate that the rate of, अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताता चलूँ, ये dC by dt is this equation is showing the direct proportionality with this equation, कि चेंज इन कंसनट्रेशन जो है वो इस डिफरेंसेस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. यानी जितना डिफरेंस होगा, कंसनट्रेशन गट में ज़्यादा होगी और ब्लड में कम होगी, उतना ज़्यादा तेज़ी से ये डिफ्यूजन का प्रोसेस चलेगा. और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से भी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है. ओके, सो दीज इक्वेशन इंडिकेट द रेट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग by passive diffusion depend on the surface area of the membrane that is available for drug absorption. जितना सरफेस एरिया अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब होगी. Thus the small intestine, primarily duodenum, is the major site of drug absorption. क्यों? Owing principally to the presence of villi and macrovilli which provides such a large surface area for absorption. क्योंकि ये यहाँ पे विलाई और माइक्रोविलाई होते हैं और ये सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगी. दिस इक्वेशन 19.1, दिस वन इक्वेशन 19.1 इज दिस वन. ये क्या कहती है? दिस इक्वेशन सेज के also indicate that the rate of drug absorption depend on a large concentration gradient of a drug existing across the gastrointestinal membrane. Means कि difference of concentration इसके दरमियान में और इसके दरमियान में, Cg और Cb, इनके दरमियान में जो difference होगा उस पर डिपेंड करेगा. This concentration gradient is influenced by the apparent partition coefficient exhibited by drug with respect to the gastrointestinal membrane fluid interface and the gastrointestinal membrane blood interface, यानी ब्लड में और GI फ्लूइड में कंसनट्रेशन क्या होगी. इट इज़ यानी कितनी तेज़ी से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट या पार्टीशन करती है.
It is important that the drug has sufficient affinity or solubility for a membrane, for the membrane phase, so that it can partition readily into the gastrointestinal membrane. In addition, after diffusing across the membrane, the drug should exhibit sufficient solubility in the blood such that it can partition readily out of the membrane phase into the blood. यानी ड्रग की इतनी सॉलिबिलिटी भी होनी चाहिए, एफिनिटी होनी चाहिए कि वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन अल्हम्दुलिल्लाह एक्सक्यूज मी, तो ड्रग की जो है वो सॉलिबिलिटी उस मेम्ब्रेन में भी होनी चाहिए जिसको क्रॉस करके जो है वो या पार्टीशन करके वो जाएगी वहाँ से गट से, और फिर जब वो पार्टीशन हो जाएगी, जब वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने लगेगी तो फिर उसकी सॉलिबिलिटी ब्लड में भी होनी चाहिए कि वो फिर वहाँ से मेम्ब्रेन से निकल के ब्लड में डिज़ोल्व हो जाए. On entering the blood in the capillary network, in lamina propria, the drug will be carried away from the site of absorption to the rapidly circulating gastrointestinal blood. जैसे ही ड्रग जो होगी एंटर होगी कैपिलरी नेटवर्क में, लेमिना प्रोप्राया से ड्रग जो होगी कैरी होती हुई एब्जॉर्प्शन साइट से जीआई मेम्ब्रेन के उस तरफ चली जाएगी जहाँ पे ब्लड सप्लाई है. It will then become diluted by distribution into the large volume of the blood, that is systemic circulation. उसके बाद फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद ड्रग जो होगी वो डाइल्यूटेड हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड में, एंड बाय डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द बॉडी टिश्यू एंड अदर फ्लूइड्स एंड बाय सब्सिक्वेंट मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. और जब वो ब्लड में यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग आ जाएगी तो डिस्ट्रीब्यूट होगी बॉडी टिश्यूज़ में, दूसरे बॉडी फ्लूइड्स में, और उसके बाद फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा और एक्सक्रीशन होगा. इन एडिशन द ड्रग में बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन इन द ब्लड. ड्रग जो होगी वो बाइंड होगी plasma protein in blood which will and because of given membrane DANH and can be regarded as constant, means dC by dt is equal to Kc. तो इसके बाद जो ड्रग होगी वो इसमें से इसमें से कुछ ड्रग जो होगी वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगी ब्लड में, और कुछ ड्रग जो होगी वो अपने प्रोसेस में द ड्रग फर्दर लोअर कंसनट्रेशन से वो फ्रीली अवेलेबल इन द ड्रग इन द ब्लड. यानी द पॉइंट इज़ दैट कि ड्रग जो होगी इन एडिशन टू ड्रग विच विल बाइंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन इन द ब्लड, यानी जो ड्रग ब्लड में आ जाएगी कुछ तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगी. इसके अलावा विच विल फर्दर लोअर द कंसनट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग इन द ब्लड, जो बाइंड हो जाएगी वो फ्री ड्रग की कंसनट्रेशन को कम कर देगी. कॉन्सिक्वेंटली the blood act as a sink for absorbed drug and ensure that the concentration of a drug in the blood at the site of absorption is low in relation to that of gastrointestinal fluid at the site of absorption. ये जो ड्रग बाइंड हो जाएगी ये भी कंसनट्रेशन में काउंट नहीं होगी, तो उस वजह से जो कंसनट्रेशन ब्लड में कंसिडर होगी वो कम ही कंसिडर होगी. इसी वजह से दैट इज CG इज़ ग्रेटर दैन CB, यानी कंसनट्रेशन इन गट इज विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन कंसनट्रेशन इन ब्लड. द सिंक कंडीशन प्रोवाइडेड बाय द, इसको हम सिंक कंडीशन कहते हैं. द सिंक कंडीशन प्रोवाइडेड बाय द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंश्योर दैट ए लार्ज कंसनट्रेशन ग्रेडियंट इज मेंटेन अक्रॉस द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस. और यही वजह है कि ये जो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है यानी इसका डिफरेंस जो है वो मेंटेन रहता है, और लार्ज क्वांटिटी में ड्रग जो है गट से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है इसी सिंक कंडीशन के मेंटेन होने की वजह से. The passive absorption process is driven solely by the concentration gradient of the diffusible species of the drug that exist across the gastrointestinal tract. यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि ये पैसिव एब्जॉर्प्शन यानी पैसिव डिफ्यूजन का प्रोसेस है, इसको जो ड्राइव करता है वो वही कंसनट्रेशन ग्रेडियंट यानी कंसनट्रेशन का जो डिफरेंस है अक्रॉस द मेम्ब्रेन वही जो है वो ड्राइविंग फोर्स है. दस द इक्वेशन 19.1 एंड 19.2, ये 19.2 है और ये 19.1 है जो कि फिक्स लॉ है, कैन बी कंबाइंड एंड रिटन एज dC by dt इज इक्वल टू dACG अपॉन H. यहाँ पे CB इसलिए कम हो गया कि अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल रूल इफ दिस वन इज़ ग्रेटर दैन, जैसे CG इज़ ग्रेटर दैन CB, तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा. जब वो चीज़ नेग्लिजिबल हो जाएगी तो फिर उसको हम वहाँ से उसको हम कहेंगे कि ये इसके मुकाबले में ज़ीरो है, तो इसलिए इसको हम यहाँ से हटा देंगे. तो अब K की वैल्यू रखी जो कि dA by H है वो आ गई, तो dC by dt इज इक्वल टू dACG अपॉन H. एंड बिकॉज फॉर ए गिवन मेम्ब्रेन dA and H can be regarded as constant, so dC by dt is equal to kCG. यानी अब इसका मतलब है बस यही गट की कंसनट्रेशन इज द ड्राइविंग फोर्स जो कि एब्जॉर्प्शन करा रही होगी.
This is called equation 19.4. In this equation 19.4 an expression for first order kinetic process, और इसको first order kinetic process कहेंगे कि जितनी कंसंट्रेशन गट में ज़्यादा होगी उतनी फास्ट एब्जॉर्प्शन होगी, और जितनी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी जो एब्जॉर्प्शन है वो भी कम होती चली जाएगी. इसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी कहते हैं. And this indicate that the rate of passive diffusion or passive absorption will be proportional to the concentration of absorbable drug in solution in the gastrointestinal fluid at the site of absorption, and therefore that the gastrointestinal absorption of most drug follow the first order kinetics. अब क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस k को हटाएं यानी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो यहाँ साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा. तो dc by dt यानी चेंज इन कंसंट्रेशन यानी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन इन द गट. जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, जितनी कम कंसंट्रेशन उतनी कम एब्जॉर्प्शन. एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. It has been assumed that in this description that the drug exists solely as single absorbable species. Many drugs, however, are weak electrolyte that exist in aqueous solution in two species, namely the unionized species and unionized species. क्योंकि ज़्यादातर ड्रग जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो GI फ्लूइड में कुछ फॉर्म जो होता है वो उसका आयोनाइज हो जाता है और कुछ फॉर्म अनआयोनाइज फॉर्म में रहता है. Because it is unionized form of a weak electrolyte drug that exhibit greater lipid solubility. जो unionized form होगी तो उस पर polarity नहीं होगी, तो उस वजह से उसकी lipid solubility ज़्यादा होगी. And compared to then the corresponding ionized form, जो ionized form होगी वो more water soluble होगी क्योंकि उस पर charge develop हो रहा होगा. The gastrointestinal membrane is more permeable for unionized species. क्यों? क्योंकि gastrointestinal membrane contain a lipid membrane, which is a bilipid layer. उस वजह से वो लिपिड यानी सॉलिबिलिटी को बढ़ाती है, तो अनआयोनाइज फॉर्म आसानी से इससे गुजर जाएगी. Thus, the rate of passive diffusion of a weak electrolyte is related to the fraction of total drug that exists in unionized form in solution in the gastrointestinal form at the site of absorption. लिहाजा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगा वो डिपेंड करेगा कि कितना फ्रैक्शन ड्रग का यानी कितना परसेंट ड्रग जो है वो अनआयोनाइज फॉर्म में अवेलेबल है इन GI ट्रैक्ट जो कि आसानी से एब्जॉर्ब हो सकती है यानी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है. द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड एंड द फ्रैक्शन इज डिटरमिन्ड बाय द डिसोल्यूशन कांस्टेंट ऑफ द ड्रग दैट इज pKa वैल्यू, यानी जिसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं. तो उससे हमें पता चलेगा कि कितनी ड्रग जो है वो डिसोसिएटेड यानी आयोनाइज फॉर्म में और कितनी ड्रग जो है वो अनआयोनाइज फॉर्म में है. इसके अलावा एंड द बाय द pH ऑफ द एक्वस एनवायरनमेंट, जो वहाँ pH है उस पर भी डिपेंड करेगा. इन अकॉर्डेंस विद द हेंडरसन-हेसेलबाख इक्वेशन फॉर वीक एसिड्स एंड बेसिस, उस हेंडरसन-हेसेलबाख इक्वेशन जो है वो हमें ज़्यादा डिटेल में बताएगी कि ये किस तरीके से जो है वो आयोनाइज होगी, जो कि है pKa इज इक्वल टू pH माइनस log of ionized form divided by log of unionized form. The gastrointestinal absorption of weak electrolyte drug is enhanced when the pH at the site of absorption favors the formation of large fraction of a drug in the aqueous solution that is unionized, and this forms the basis of the pH partition hypothesis. ये pH partition hypothesis हमें ये बता रहा है कि अगर सपोज दैट, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर सपोज दैट एज यू नो कि pH ऑफ स्टमक क्या होता है, एसिडिक होता है. ठीक है, pH ऑफ स्टमक एसिडिक होता है. और इफ़ द ड्रग इज़ बेसिक इन नेचर एंड द ड्रग इज़ बेसिक इन नेचर, तो ड्रग जब स्टमक में आएगी तो उसको एसिड मिलेगा, तो एसिड बेस रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट एंड वाटर बनेंगे यानी आयोनाइजेशन होगी. उससे क्या होगा कि आयोनाइजेशन होगी तो ड्रग जो होगी वो पोलर हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी. जब आयोनाइज हो जाएगी तो वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, तो एक्वस पोर से ये एब्जॉर्ब हो सकेगी. लेकिन क्योंकि ड्रग वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% आयोनाइज नहीं होगी, कुछ पोर्शन इसका अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगा. लेकिन अगर ये उस वाटर सॉल्युबिलिटी में सॉल्युबलाइज हो जाता है तो फिर ये जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, क्योंकि वो लिपिड इन नेचर है, उसको क्रॉस कर जाएगा. कुछ पोर्शन ड्रग का जो होगा लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ एक्वस पोर से एब्जॉर्ब हो जाएगा. इसी तरीके से अगर ड्रग जो होगी एसिडिक होगी, जब ड्रग एसिडिक होगी
तो जब वो स्टमक में आएगी तो स्टमक का पीएच भी एसिडिक है, तो एसिड होंगे तो ड्रग जो होगी वो आयोनाइज नहीं होगी, यानी अनआयोनाइज फॉर्म में ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि अनआयोनाइज फॉर्म में अगर वो जीआई फ्लूइड में सॉल्युबलाइज हो रही है तो वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को डिफ्यूज़ करके यानी पार्टीशन करके गुजर जाएगी, लेकिन अगर वो आयोनाइज फॉर्म में जो उसका पोर्शन होगा वो वहाँ से एब्जॉर्ब होना मुश्किल हो जाएगा, या अगर वो एक्वस पोर से एब्जॉर्ब हो जाता है तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा, बट मेजर पोर्शन विल बी अनआयोनाइज। लेकिन सिचुएशन विल बी अपोजिट व्हेन द ड्रग विल गो इनसाइड द इंटेस्टाइन, जहाँ पे पीएच जो होता है अल्कलाइन होता है, वहाँ पे जो बेसिक ड्रग होगी वो अनआयोनाइज फॉर्म में ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि वो बेसिक ड्रग है और पीएच भी अल्कलाइन है, तो उस वजह से वो अनआयोनाइज फॉर्म में ज़्यादा होगी और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर सकेगी। इसी तरीके से एसिडिक ड्रग जो कि वो ज़्यादा आयोनाइज हो जाएगी इंटेस्टाइन में, तो वो फिर एक्वस पोर से एब्जॉर्ब होगी और वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से उसका जो आयोनाइज फॉर्म है उसका गुजरना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, हमें वी नीड टू मेक ए ड्रग इन ए बैलेंस फॉर्म एंड टू मेक ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, ताकि ड्रग का कुछ पोर्शन अनआयोनाइज फॉर्म में रहे और कुछ पोर्शन आयोनाइज फॉर्म में रहे जीआई फ्लूइड्स में, ताकि जो ड्रग जो है वो आयोनाइज फॉर्म में एब्जॉर्ब हो सकती है एक्वस पोर से, वो उससे एब्जॉर्ब हो जाए, और जो अनआयोनाइज फॉर्म में बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को यानी लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एब्जॉर्ब हो सकती है तो वो उस तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसलिए जो है वो ये आयोनाइज और अनआयोनाइज फॉर्म इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट mechanism of transport is the membrane transporter. As already stated, the majority of drug absorbed across the cell और transcellularly by passive diffusion. ज़्यादातर ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होती हैं पैसिव डिफ्यूजन के ज़रिए। However, certain compounds and many nutrients are absorbed transcellularly via membrane transporters. बहुत सारी ड्रग सब्सटेंसेज और न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म के ज़रिए एब्जॉर्ब होते हैं, जो कि इस मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं। ए कैरियर और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ए ड्रग एंड ट्रांसपोर्टिंग इट अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस इलस्ट्रेटेड इन फिगर 19.11, जो कि हम पहले देख चुके हैं। 19.11 में ये जो है मैकेनिज्म है, ये देखें, इंटेस्टिनल ल्यूमेन एंड ड्रग, दिस इज़ ए कैरियर, इसके साथ ड्रग बाइंड हुई, ड्रग प्लस कैरियर, और ये सेल मेम्ब्रेन है, इससे क्रॉस करके कैरियर यहाँ लाया और यहाँ से फिर सेल ने इंटीरियर ड्रग को रिलीज़ कर दिया, फिर वापस गया ड्रग के अलग नेक्स्ट मॉलिक्यूल को लेकर आया, तो और यूँ प्रोसेस ये चलता रहेगा जब तक कि ड्रग यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगी। तो ये ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन है, ट्रांसपोर्टर्स हैं। सिंपलिस्टिकली कैरियर मीडिएटेड एब्जॉर्प्शन इज़ ऑफन एक्सप्लेन्ड बाय आवर एज्यूमिंग देयर इज़ शटलिंग प्रोसेस अक्रॉस द एपिथेलियल मेम्ब्रेन, यानी ये एक शटल प्रोसेस के तौर पर काम करता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे शटल सर्विस होती है यूनिवर्सिटी में भी, कि वो शटल प्रोसेस एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट और गेट तक लेकर जाती है स्टूडेंट को। द ड्रग मॉलिक्यूल और आइन फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद द कैरियर ट्रांसपोर्ट इन द surface of the apical cell membrane of the polarized enterocytes, and the drug carrier complex then move across the membrane and liberate the drug on the other side of the membrane। जैसा कि हमने अभी देखा कि ड्रग जो होगी वो कैरियर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी, फिर वो मेम्ब्रेन की दूसरी साइड पे जाएगी और वहाँ पे ड्रग जो होगी वो रिलीज़ हो जाएगी और उसको कैरियर छोड़ देगा, फिर वापस आएगा अगले ड्रग मॉलिक्यूल को लेकर जाएगा। द कैरियर रिटर्न टू द इनिशियल पोजिशन इन द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन adjacent to the gastrointestinal tract and await the arrival of another drug molecule or ion, ताकि उसको ये बाइंड करे और फिर सेल के दूसरी तरफ छोड़कर आए। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ये जो ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म है ये भी दो तरह के होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। एक्टिव ट्रांसपोर्ट require energy and is a process whereby material can be transported against concentration gradient across the cell membrane, that is transport occur from a region of lower concentration to one of the higher concentration। एक्टिव ट्रांसपोर्ट नंबर वन, ये तो एक तो ये कि एनर्जी डिपेंडेंट है, इसको एनर्जी चाहिए, जैसा कि बस या शटल को फ्यूल चाहिए होता है, पेट्रोल चाहिए होता है, तो ये ड्रग को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा और उसके लिए एटीपी कंज्यूम करेगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा। लेकिन
इसकी एक अच्छी बात यह है कि अगर ड्रग की कंसनट्रेशन यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो ये उस सूरत में भी काम करेगा, अनलाइक पैसिव डिफ्यूजन। क्योंकि पैसिव डिफ्यूजन में ये था कि लिवर में कंसनट्रेशन ज़्यादा है और ब्लड में कम है, तब ये काम करेगा। अगर कंसनट्रेशन दोनों जगह बराबर हो गई तो पैसिव डिफ्यूजन का अमल रुक जाएगा। बट हेयर इट विल कंटिन्यू इवन इफ द ड्रग कंसनट्रेशन इज लो हेयर एंड हाई हेयर। ये अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। द एनर्जी arises either from the hydrolysis of ATP from the transmembrane sodium gradient and or electrical potential। एनर्जी जो आती है इसमें वो ATP इसको वो हासिल होती है, जो कि हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से मिलती है। इसके बरक्स जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है अलाउज द पैसेज ऑफ सॉल्यूट, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड यूरियाज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर। जो दूसरा मैकेनिज्म है यानी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, इसको ATPs यानी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ये बग़ैर एनर्जी के काम करता है। व्हेन सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट दे आर ट्रांसपोर्टेड डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बट ए मच फास्टर रेट दैन वुड एंटिसिपेटेड फ्रॉम द मॉलिक्यूलर साइज एंड द पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये भी बिल्कुल पैसिव डिफ्यूजन की तरह काम करता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के फेवर में काम करता है। जहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से ये सब्सटेंस लेके सेल के दूसरी तरफ पहुँचा के आएगा जहाँ पे कंसनट्रेशन कम होगी। यानी सेल के एक साइड पे ज़्यादा है, दूसरी साइड पे कम है, तो ये काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा, क्योंकि वही इसकी ड्राइविंग फोर्स है, इसको ATP की ज़रूरत नहीं होती। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट डिफर फ्रॉम एक्टिव ट्रांसपोर्ट that it cannot transport a substance against a concentration gradient of that substance। यानी ये जहाँ concentration gradient के against काम नहीं करेगा बल्कि concentration gradient के फेवर में काम करेगा, जैसा कि passive diffusion में होता है। Now there are large number of membrane transporters in the small intestine. More than 400 have been identified, but only a few are thought to be involved in intestinal absorption। तो जो आइडेंटिफाइड है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर वो तो मोर देन 400 है, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन है कि वो एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है वो बहुत फ्यू है। दीज कैन बी प्रेजेंट आइदर ऑन एपिकल मेम्ब्रेन ब्रश बॉर्डर और ऑन द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन ऑफ द एंटेरोसाइट्स एंड कैन बी क्लास्ड एज अपटेक और इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट। दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू मेन सुपर फैमिलीज, the solute carrier SLC family membrane, which are the main uptake transporter, and ATP binding cassets ABC transporters, which are the main efflux transporters। तो SLC हैं यानी solute carrier transport में फैमिलीज हैं, और ABC हैं ATP binding cassette transporters हैं, और इनको efflux transporter भी कहते हैं। efflux transporter ये करते हैं कि वो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं उनको वापस GI में ल्यूमेन में वापस इफ्लक्स कर देते हैं। दीज आर इलस्ट्रेटेड स्कीमेटिकली इन फिगर 19.12। फिगर 19.12 में देखते हैं तो ये एपिकल सरफेस है, ये PGP, ये क्या है, इफ्लक्स है, MRP2 BRCP2, इसके अलावा जंक्शनल कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ यहाँ पे मैकेनिज्म है। Most drug transporters across proteins express at the intestinal epithelia, including intestinal uptake and efflux transporters, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ यहाँ पर इंटेस्टिनल ल्यूमेन है ये, और ये ब्लड है, बेसोलेटरल सरफेस। तो अब इनको देख लेते हैं। अपटेक एंड इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स, दैट जीन दैट कोड्स फॉर देम their substrate specificity and for the example of drug detailed in table 19.2 and 19.3। टेबल 19.2 और टेबल 19.3 में इनके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ड्रग ट्रांसपोर्टर PEP-T1 जीन फैमिली SLC, ठीक है, सॉल्यूट SLC फैमिली 15 है। इंटेस्टिनल एलोकलाइजेशन एपिकल, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी डाईपेप्टाइड एंड ट्राईपेप्टाइड। ड्रग सबस्ट्रेट कौन से हैं इसके, सेफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, एनालेप्रिल, रेनिन इनहिबिटर्स एंड थ्रोम्बिन इनहिबिटर एंड बेस्टेटिन। इसी तरह से OCTN1, ठीक है, एपिकल,
क्विनिडीन एंड विरापामिल, OCT-TN2, क्विनिडीन, विरापामिल, ये मुख्तलिफ ड्रग हैं जिनको ये या तो इफ्लक्स कर देती हैं या फिर अपटेक करवा देती हैं। अच्छा, मेम्ब्रेन of the SLC family and transporter are involved in the transport of many substrates, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं many substrates को including amino acids, peptides, nucleotides, sugars, biles, neurotransmitters and vitamins. Many nutrients are actively transported in this way. Each carrier system is generally concentrated in a specific segment of the gastrointestinal tract, यानी GI ट्रैक्ट के ख़ास सेगमेंट में जहाँ पर ये मौजूद होते हैं और अपना ये काम ट्रांसपोर्ट का करते हैं। द सब्सटेंस दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय दैट कैरियर विल दस बी एब्जॉर्ब प्रीफरेंशियली इन द लोकेशन ऑफ हाईएस्ट कैरियर डेंसिटी, और वो जहाँ पे हायर कैरियर डेंसिटी होती है वहाँ से ये मटेरियल लेके ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बाइल एसिड ट्रांसपोर्टर्स आर ओनली फाउंड in the lower part of the small intestine, the ileum, and each carrier or transporter has its own substrate specificity with respect to chemical structure, यानी हर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि ये इसके ख़ास सबस्ट्रेट होंगे, ख़ास ड्रग होंगी या ख़ास न्यूट्रिएंट होंगे जिनको ये ट्रांसपोर्ट कर सकते होंगे, तो वो स्पेसिफिसिटी मौजूद होगी और वो स्पेसिफिसिटी होगी बेस्ड अपॉन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। Some carriers and transporters have broader specificity than others, यानी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र कर सकते हो। Thus, if a drug structurally resembles a natural substance which is actively transported, then the drug is also likely to be transported by the same carrier mechanism. अगर ड्रग का उस नेचुरली अकरिंग सबस्ट्रेट से स्ट्रक्चर मिलता होगा तो फिर वो भी उस ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब हो सकता होगा। The SLC superfamily include many important transporter for drug absorption and drug disposition. SLC superfamily में बहुत सारे ड्रग की एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, such as proton dependent oligopeptide transporters, peptide transporter, protein 1 which is PEPT1 and organic anion transporter OATP transporters and nucleoside transporter, plasma membrane monoamine transporter PMAT and the monocarboxylate transporter MCT. So the SLCO family is made up of organic anion transporter OATP, ये भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड के। these uptake transporters use a variety of porter mechanisms, that is uniporter, antiporter and सिमपोर्टर, यानी सपोर्ट सर्विस जो कि ले जाता है। देखें एयरपोर्ट पर भी तो पोर्टर होता है ना जो सामान उठाता है। यूनिपोर्टर्स बाइंड एंड ट्रांसपोर्ट ओनली वन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट एट ए टाइम। सिमपोर्टर्स एंड एंटीपोर्टर्स आर एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स विच कैन मूव मोर देन वन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट एट वंस एंड यूजुअली ड्रग मॉलिक्यूल एंड मेटालाइट। सिमपोर्टर्स और को ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट आयंस substrates simultaneously in the same direction, while the antiporters or the counterporters simultaneously transport ion in one direction and substrate into the opposite direction. ठीक है, तो वन यानी एंटीपोर्टर जो काउंटरपोर्टर जो होंगे वो दोनों डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। As the driving force, the sympathors and antiporter is voltage or ion gradient, usually sodium, so they are also called ion coupled solute transporter. However, as the driving force for these transporter is voltage, hydrogen ion or sodium, they can also be known as secondary active transporter. यानी ये जो काम करते हैं पोर्टर वो अपनी एक्टिविटी जो होती है वो आयन की वजह से यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी तो ये पोर्टर काम करेंगे वरना काम नहीं करेंगे। A number of substrates can usually bind to transporters and thus different drug can compete with the same transporter. ऐसा भी हो सकता है एक ही दो ड्रग हैं वो एक ही ट्रांसपोर्टर को कॉम्पीट कर रही है, तो जो आसानी से उसके साथ बाइंड हो जाएगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और जो बाइंड नहीं हो सकेगा वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकेगी। Thus the transporter can be inhibited competitively, non-competitively and uncompetitively. तो तीनों मैकेनिज्म से ये जो ट्रांसपोर्टर है वो इनहिबिट भी हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिवली भी, नॉन कॉम्पिटिटिवली भी एंड अनकॉम्पिटिटिवली।
Competitive inhibitors occur when both the substrate and inhibitors compete with the same binding site. यानी दो ड्रग्स हैं या दो सबस्ट्रेट हैं वो सेम बाइंडिंग साइट्स को कॉम्पीट कर रही हैं, तो उस वक्त कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हो जाएगा एक का. नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन अकर when the inhibitor bind not to the transport active site but on the allosteric site, which lower the affinity of the transporter for the substrate due to changing in the conformation of the transport. यानी सेम साइट्स होते नहीं, लेकिन एक बाइंड होकर दूसरी साइट को जो है उसकी जो शेप है उसको चेंज कर देता है, तो उस वजह से दूसरा जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड नहीं हो पाता और फिर उसकी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती. Uncompetitive binding occur when the inhibition bind to intermediate of the substrate transporter complex to terminate the translocation step. यानी translocation यानी जो उसकी लोकेशन का जो ट्रांसफ़र का है स्टेप वो टर्मिनेट कर देता है, जिसकी वजह से ये जो अनकॉम्पिटिटिव बाइंडिंग यानी अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन भी इसको कहा जाता है. मैनी पेप्टाइड्स लाइक ड्रग्स. अच्छा, ये जो यहाँ से फिर अब हम ड्रग की जो एग्जाम्पल है मैनी पेप्टाइड्स लाइक ड्रग्स, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच.